being difficult for many people, including me, when I was learning it first. Usually होता ये है कि जब लोग machine learning पढ़ना start करते हैं and they get this algorithm in very first instance, like after learning linear regression and logistic regression, third algorithm ही वो naive Bayes पढ़ रहे होते हैं. Because I have seen in multiple curriculums the naive Bayes is supposed as a very initial algorithm for machine learning. I don't know why, but because it came with some high concepts of conditional probability, तो naive Bayes एक बहुत important algorithm है machine learning का, और इसीलिए शायद there are so many institutes, there are so many tutorials on the internet, Coursera, Udacity, and you can find it everywhere, but they always start with the naive Bayes, which is the point where students usually leave machine learning. That is why I didn't teach machine learning on the very first instance. If you see this, we have already done half of the program, and now we are learning this machine naive Bayes thing. Why? Because many students are not always good at probability, but don't worry, everyone become good in every single discipline over time after giving some crucial time in practice, and all right, vice versa. तो आज हम नई बेस पढ़ेंगे, और नई बेस से पढ़ने से पहले हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है. और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ओवरव्यू क्यों होना ज़रूरी है? ताकि हमें बेस थ्योरम समझ में आए. नई बेस अपने नाम से अगर आप नईव का मतलब जाने तो नईव का मतलब होता है बोला. ये वो अपने यूं कह लें आप कि आई डोंट नो व्हाई इट्स नोन एज नईव बेस, बट नईव का मतलब भोला होता है. इट्स लाइक नईव बेस अपने भोलेपन की वजह से या बहुत मशहूर है, या तो पता नहीं नईव बेस अपने भोलेपन ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन दे रहा होता है. आई डोंट नो व्हाई. व्हाट्स द रियल थिंग विच इज बीइंग नेम्ड एज नईव बेस. लेकिन हाँ, जो मेन थिंग व्हाट आई हैव गॉट इन माय लर्निंग टाइम इज कि इसको नईव इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम मैथमेटिकल एल्गोरिथम. और मैथमेटिकल एल्गोरिथम बेस्ड थ्योरम है, और जो आपके अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने जा रहे हैं. सो आई एम जस्ट सीइंग दैट मेनी अटेंडेंट्स आर गेटिंग अप सो क्विकली. बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं. सो आई वांट कि सब जल्दी तेज़ी से आ जाए, बिकॉज टुडे आई डोंट वांट एनीवन to come late today. That is why I just give a trigger on all WhatsApp group and Discord servers, because I just sat at 6 p.m. to make this notebook ready for today's workshop, and then I saw, oh my God, this workshop is going to be a little bit horror for some students. So it's still for me it takes some time. It takes 1.5 hours to just revise everything about algorithms, and you can say किस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा है, and so many things. All right, so before starting, let me share my notebook. Okay, where is my notebook? So, okay. Why Teams it's not showing my notebook? Okay. Teams is not showing my notebook. All right. Okay. It's asking me where is your notebook. Wow. All right. What the heck is happening? Just wait for one more second. All right, all right. Okay. So I have to open my notebook again in another tab of Google Chrome to make it sure that Teams can access it. Okay. All right. So before starting naive Bayes classification, we'll start some basic intuition regarding condition probability and Bayes theorem, जो कि यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने mention की है, but I have made another PDF which you can access from GitHub file, which is of which URL has already been shared in WhatsApp groups and Discord server as well. तो मैं यूजुअली ये भी ईमेल इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मैंने अभी तक क्लाउड पे बनाया नहीं चैनल अपना, एंड रोज सबको 2,000 स्टूडेंट्स को ईमेल करना इट्स नॉट इजी थिंग. और आपकी इतना कोटा नहीं होता जीमेल पे, 500 ईमेल्स के बाद आपको रोक देता है. सो बाय सिंपली एक्सेस है. मैं यहाँ का यूआरएल भी शेयर कर देता हूँ.
on Teams Q&A, so you can access it from Teams as well. All right. And now from here you have to access this file, conditional probability.pdf. Remember this one, conditional probability.pdf. This is a PDF file. You can simply download this. I'm going to do the same thing. I will download this file. It will download in a second. And then just simply make it cut from here. All right. So now it's already be 8:09 और काफ़ी टाइम हो गया है तो we should start conditional probability. So what's conditional probability? Conditional probability by its name is representing you. अगर आपको probability का मतलब पता हो, for example probability के सबसे easy example अगर मैं आप लोगों को दूं कि वो दीज आर लाइक चांसेस. अगर आपने हाई स्कूल मैथ्स में पढ़ा हो प्रोबेबिलिटी को अच्छे से तो आपको इसकी बहुत अच्छी इंट्यूशन ऑलरेडी होगी, पर अगर नहीं भी पढ़ा सो डोंट वरी. फॉर एग्जांपल हम परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, लाइक परसेंटेज इज आल्सो वन काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी. व्हाई? बिकॉज वी आर सेइंग हाउ मच आवर ग्रेड इज गुड. हमारा फॉर एग्जांपल ग्रेड आ रहा है लाइक 85%. सो आवर ग्रेड 85% इज बीइंग स्कोर्ड. जो 15% रह गया वो ब्लैंक है, वो एम्प्टी है, वो स्कोर नहीं हुआ. दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल इन आवर लाइव्स जो हम लोग यूजुअली परसेंटेजेस निकाल रहे होते हैं. अब सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, लाइक डेक ऑफ कार्ड्स. we are having some certain amount of deck of cards. I don't play usually a deck of cards, but assume that there are some deck of cards. तो अगर अब किंग है, अब किंग कितनी दफ़ा हमारे पास रिपीट हो सकता है, तो वो कितनी दफ़ा these chances are what are representing probability. Now what is conditional? Conditional means कि वो जो probability है वो किसी ना किसी condition के ऊपर base करती है. There are two types of probability, means unconditional probability and conditional probability. Unconditional probability is like kind of an advanced thing, which is I'm still learning it. Unconditional probability is being usually taught to master student, but I'm learning it right now. और unconditional probability का कोई काम भी नहीं होता इतना खास in the lives of machine learning engineers. वो बहुत ज़्यादा deep learning scientists जो होते हैं वो unconditional probability के ऊपर खेल रहे होते हैं, because it's like 10 times more difficult than this kind of thing, and it has a very rare scenario for being implemented in our daily lives. All right. So अगर हम बात करते हैं conditional probability की, let's assume this example जहाँ लिखा हुआ find the probability of event A given that event B has already been occurred. इन अल्फाजों के ऊपर थोड़ा गौर दे रहा है. Find the probability of event A given that event B has already occurred. अब क्या इससे समझ में आ रहा है, ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है ये सब इसको रिप्रेजेंट कर रही है. इस P A बार B जो है, ये जो बार है ना, इसका मतलब होता है गिवन दैट. ये मैंने आगे जाके कहीं लिखा हुआ भी होगा कि ये बार का मतलब होता है गिवन दैट. वो ये बोल रहा है कि भाई इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मालूम करो जब हमें क्या इवेंट बी ऑलरेडी गिवन है. दोबारा इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मालूम करो गिवन दैट जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी बी या इवेंट बी सॉरी गिवन है. तो एज्यूमिंग कि हमारे पास इवेंट बी ऑलरेडी गिवन है, जो हमारे पास पूरा यूनिवर्स है उसमें हमारे पास इवेंट बी गिवन है. तो हम क्या कर रहे होते हैं जब हमारे पास इवेंट बी गिवन होता है, तो ये अगर हम वेन डायग्राम देखें, सो इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए. आई होप कि सबको इजीली नज़र आ रहा होगा. तो ये हमारे पास एक इसकी कहलाती है वेन डायग्राम. सो एज्यूम कि ये हमारा पास एक शेड है जिसको हम कह रहे हैं इवेंट बी, और ये हमारे पास एक शेड है जिसको हम कह रहे हैं इवेंट ए. और ये जो दोनों का कॉमन है इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. आप इसको ए इंटरसेक्शन बी भी पढ़ सकते हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी भी पढ़ सकते हो. बिकॉज अगर आप इंटरसेक्शन की आप बात करो तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है. इंटरसेक्शन इज जस्ट लाइक अ कॉमन बिटवीन ए एंड बी. जो इनका मोस्ट कॉमन होगा ए एंड बी का, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी के अंदर लाई कर रहा होगा. अगर हम इसकी एक जनरल एग्जांपल के अंदर जाएं तो मैंने एक जनरल एग्जांपल यहाँ नीचे मेंशन की हुई है. फॉर एग्जांपल हमारे पास इवेंट ए के अंदर 40 चिल्ड्रन है और इवेंट बी के अंदर हमारे पास 30 चिल्ड्रन है. 30 चिल्ड्रन वो है जिनको रेड कलर पसंद है, ठीक हो गया, और 40 चिल्ड्रन वो है जिनको ब्लैक कलर पसंद हो गया. अब गौर से सुनिएगा, अब
कुछ चिल्ड्रन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको दोनों कलर पसंद हो, तो वो कितने चिल्ड्रन है? तो वो 10 चिल्ड्रन है। मतलब इसके अंदर से भी और इसके अंदर से भी वो 10 चिल्ड्रन है जिनको क्या पसंद है? यू कैन से बहुत पसंद है, रेड और ब्लैक पसंद है। मैं खुद भूल जाता हूँ बताते बताते। ऑलराइट, सो अब हमें ये कैसे मालूम होगा कि हमारे पास, ये तो मालूम है कि हमारे पास 30 चिल्ड्रन थे और उन 40 चिल्ड्रन थे जो बी के थे और 40 चिल्ड्रन थे हमारे पास जो ए के थे और उनमें से कॉमन 10 चिल्ड्रन है जिनको दोनों ही पसंद है। हमें अब ये कैसे मालूम होगा कि उसमें कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं 30 में से जो जिनको दोनों पसंद है? अब इस 10 के अंदर ये तो नहीं लिखा ना कि 6 बंदे 30 के थे या 4 बंदे 40 के थे या 6 बंदे 40 के थे या 4 बंदे 30 के थे। ये हमें यहाँ पे नहीं मालूम, ये हिडियस है। सो हाउ टू नो दिस? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जो हमने ऊपर पढ़ रहे थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। When even b is given means हमारे पास probability of b ऑटोमेटिकली आ गई। अब probability of b कैसे निकालेंगे? हमारे पास तो even b given है, probability of b तो given नहीं है। तो सिंपल क्या तरीका होता है, अगर आप परसेंटेज निकाल लियो जितने भी हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके पास, आप उसके अंदर से वो नंबर माइनस कर डिवाइड करो और फॉर एग्जांपल अगर नीचे आए तो हमारे पास फॉर एग्जांपल टोटल एग्जांपल के तौर पर हमारे पास टोटल 80 बन रहा है। पी बी इज इक्वल टू 80। हमारे पास इवेंट बी के अंदर हमारे पास वैल्यू थी 30। सो वी गोना डिवाइड दिस 30 विद 80 ताकि हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाए कि टोटल तमाम बंदों के अंदर कितने बंदे ऐसे थे जो बी के हैं। तमाम बंदों के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर यूनिवर्स। ये वेन डायग्राम के अंदर पूरी यूनिवर्स कहलाती है। तो इस पूरी यूनिवर्स के अंदर हमारे पास कितने बंदे बी के थे? तो इसके अंदर हमारे पास, हमने बोला कि भाई हमारे पास टोटल 30 स्टूडेंट्स थे या 30 चिल्ड्रन थे जो बी के थे। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 80 से जो हमारे पास मैक्सिमम बंदे हैं डिवाइड कर देंगे और इसको लिख दिया हमने इज इक्वल टू 0.375 इज इक्वल टू 0.375 लिख दिया। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आ रही होगी। ये इस तरह है जिस तरह हम लोग जैसे मॉडल की एक्यूरेसी निकाल रहे होते हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट से, और जो फिर एक्यूरेसी आती है वो हमारे पास वो बेसिकली डिवाइड हो रहे होते हैं उनके वैल्यूज या डिफरेंस निकल रहा होता है और फिर जो भी है वो सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से हम डिफरेंस निकाल रहे हैं लेकिन इट्स नॉट इन माइनस फॉर्म, इट्स हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं मैक्सिमम नंबर से। तो हमारे पास नंबर आ गया 0.375। देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और वो क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 10 है हमारे पास। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की हमारे पास क्या वैल्यू है 10। अगर हम 10 की वैल्यू को डिवाइड करते हैं 80 से तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 0.125। कितना आसान है, हमारे पास की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी और 0.125 आ गई। अब हमें मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन गिवन बी कि फॉर एग्जांपल इसमें ए के कितने बंदे थे। तो अगर हम अभी तो खैर मैं आपसे ये बोला था ना कि इसमें कितने बंदे बी के हैं, अब मैं ये मालूम करता हूँ कि भाई इसमें कितने बंदे ए के हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहें तो हम प्रोबेबिलिटी किस तरह मालूम करेंगे कि फॉर्मूले के अंदर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे किसकी, पी इंटरसेक्शन बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू हमारे पास नीचे आ रही थी, वो आ रही थी 0.125 ये रही। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की क्या वैल्यू हमारे पास आ रही थी 0.375। तो 0.125 ऊपर आ जाएगा और 0.375 नीचे आ जाएगा जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है। और इज इक्वल टू हमारे पास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 0.333। मतलब इट्स लाइक कि हमारे पास 33% चिल्ड्रन जो थे वो थे जो हमारे पास इवेंट ए के अंदर से थे। तो अगर हमारे पास इवेंट ए के अंदर से थे, मतलब क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। बहुत छोटी सी एग्जांपल है कंडीशन प्रोबेबिलिटी की, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा, इतना लेके जा रहा हूँ कि डॉट से डॉट मिलाते हुए हम नाइफ बेच को समझ सकें। तो वो डॉट से डॉट मिलाते के अगर आपको नाइफ बेच समझना है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि भाई इवेंट ए के अंदर से ना 33% लोग थे। तो अगर 10 हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं तो उन 10 को 0.33 से मल्टीप्लाई कर दो
तो 3.3 मतलब अराउंड 3 to 4 पीपल हमारे पास जो है इवेंट ए में से थे, बाकी तमाम लोग जो थे हमारे पास इवेंट बी में से थे। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और जितनी भी चीजें हैं किसी तरीके से हम डिवाइड कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास यहाँ बी आ रहा होता सो वी वर एबल टू परफॉर्म वाइस वर्सा। सब हमें फॉर्मूले की वैल्यूज चेंज करनी होती है, किस तरीके से करनी होती है, ऊपर ही होगा। यहाँ पे अगर हमारे पास होता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो यहाँ पे हमारे पास ए की जगह बी आ जाता। इसको अगर आप चेंज ना भी करते तो उससे कोई इशू नहीं होता, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, दोनों सेम होता। और यहाँ नीचे क्या आ जाता हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये एक छोटा सा पार्ट है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। क्या आप लोगों के यहाँ तक बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ गया? सो इफ नॉट सो प्लीज लेट मी नो दिस। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे दोबारा बता दें, बिकॉज देयर इज ऑलवेज 20 सेकंड डिफरेंस, तो मुझे आप लोगों के 20 सेकंड डिले से मालूम हो रहे होंगे। सो आई एम गोना क्लियर एवरी सिंगल थिंग यू आर हैविंग। मीनवाइल लेट मी सी कि डिस्कॉर्ड पे कोई सवाल तो नहीं आ रहा। All right, so some people saying no, we don't have any questions. No one having question. Very good to see that. ये सबके बिल्कुल सही समझ में आ गया. So we're gonna move. Let me see in Discord as well. Okay. वैसे yeah, usually someone asks कि इसकी usually all right. Okay. अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको दूं उसकी, तो डिस्कॉर्ड पे भी इत्तेफाक से किसी का कोई सवाल नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, हमारे पास फॉर एग्जांपल वो होती है, डाइस होती है। आई डोंट नो व्हाट टू से डाइस इन उर्दू, बट हमारे पास एक डाइस है। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 6 के कोई भी नंबर हमारे पास आ सकता है आफ्टर रोलिंग इट। अब फॉर एग्जांपल के मैंने बोला कि भाई 5, एज्यूम कर लो कि 5 नहीं आएगा। अगर 5 आ गया तो दोबारा रोल करना है, और 2 नहीं आएगा, तो हमारे पास कितने बचे? 1 बच गया, 3 बच गया, और क्या बच गया? 4 बच गया, और 6 बच गया। 5 को मैंने ले लिया इवेंट ए के अंदर, और 2 को मैंने ले लिया इवेंट बी के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमारे पास वो 4 वैल्यूज आ गई जो कॉमन थी। अब कौन सी इवेंट बी के अंदर जानी है या कौन सी इवेंट ए के अंदर जानी है? फॉर एग्जांपल मैं 2 वैल्यूज ले रहा हूँ, तो अब जो भी मैं रोल डाउन करूंगा हमें उन चारों में से कैलकुलेट करना होगा, उस इवेंट बी या इवेंट ए में से कैलकुलेट। बड़ी पुअर एग्जांपल दिया मैंने, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। आगे और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो मैं एक प्रॉपर एग्जांपल में दूंगा जो नाइफ बेस से रिलेटिव भी होगा, बिकॉज यू आर गाइस सेइंग कि एवरीथिंग इज क्लियर। सो अच्छा, ऑलराइट, सो दिस इज आवर बेस थ्योरम। ये मैंने पूरी की पूरी इमेज जो है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम की ये विकिपीडिया से काट के लगाई है। सो इफ यू वांट टू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इन वेरी डिटेल, so you can simply type on the internet Bayes theorem and you can search on Wikipedia. I hope you won't understand this because उन्होंने बहुत ज़्यादा scientific way में लिखा हुआ है. So but let me, it's my duty to share the scientific theory with you as well. So Bayes theorem is stated as mathematically as the following equation. ये इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन से डिफरेंट है। ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास थी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन थी। ये जो हमारे पास है ये बेस थ्योरम की इक्वेशन है। अब इस बेस थ्योरम की इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं? दैट बेस थ्योरम इज स्टेटेड मैथमेटिकली एज द फॉलोइंग इक्वेशन। अब गौर से देखिएगा, वेयर ए एंड बी आर इवेंट्स एंड पी बी इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन यूजुअली हम लोग जब सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो नहीं देख रहे होते, लेकिन ऐसा हमेशा होता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की प्रोबेबिलिटी 0 हो रही हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर हम किसी एक को भी 0 अज्यूम कर लें, दूसरा ऑटोमेटिकली 1.0 हो जाता है, मतलब 1.0 ऑटोमेटिकली बन जाता है। सो हम अगर कभी भी इस पे बायस होके नहीं बोल सकते,
दैट सम कैन बी 0, वो भी रेयर सिनेरियोज होते हैं यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। अभी यहाँ पे हम उन चीज़ों को डील नहीं कर रहे। So A and B are events. You can say A and B are groups. A or B can be connections as well. So यहाँ पे P and B is a conditional probability, the likelihood of event A occurring that given that B is true. B given that A is also conditional probability, the likelihood of event B occurring that given that A is true. Or these are the probabilities of observing A and B respectively. They are known as the marginal probability. इस पूरे पैराग्राफ के अंदर सब दो चीज़ें हमारे समझने की थी, और वो क्या थी कि पी ए गिवन दैट बी हो या पी बी गिवन दैट ए हो, उससे इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और क्या डिफरेंस आता है वो आगे जाके हम देखते हैं। इसको पढ़ते इस तरीके से है कि होती ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे मेरा कर्सर है, और इसको पढ़ते इस तरीके से पी ए गिवन बी या पी इवेंट ए गिवन गिवन दैट इवेंट बी इज ट्रू। तो हमारे पास बी इज ट्रू का मतलब क्या है कि बी की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है। अगर हम बोल देंगे बी इज फॉल्स तो इट मीन्स कि बी 0 हो गया। सो बी इज ट्रू, बी हमें पता भी है, बी नोन भी है, दैट इज व्हाई हाउ वी सेड कि अकरिंग दैट बी या गिवन दैट दैट अकरिंग बी इज ऑलरेडी नोन एज इज ऑलरेडी नोन या ऑलरेडी ट्रू। अब यहाँ पे अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ए and probability B are the probabilities of observing A and B respectively. They are known as the marginal probability. What are marginal probability? इस सब को छोड़ दें और नीचे आए। अगर आपके पास PDF खुली हुई हो so you can access this. यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल स्पैम की जगह आप रख दें A और लॉटरी की जगह रख दें आप B, या एक जगह आप रख दें स्पैम या B की जगह रख दें आप लॉटरी। हमारे पास एक इवेंट है स्पैम और एक इवेंट है हमारे पास लॉटरी। हमें क्या मालूम करना है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट द अमाउंट ऑफ लॉटरी इज ऑलरेडी ट्रू, या अमाउंट ऑफ लॉटरी या गिवन दैट लॉटरी इज नोन टू अस, कुछ भी बोल सकते हैं, इट्स ऑल ऑन यू गाइस। तो हमें क्या मालूम करना है कि कितनी भी जो लॉटरी यूजुअली हो रही होती है, कितनी लॉटरी में से कितनी परसेंट जो है स्पैम होता है, या यूं कह लें वी आर हैविंग अ यूनिवर्स कि हमारे पास न्यूज़ फीड आ रही है, न्यूज़ फीड ऑफ वर्ड। हम यूनिवर्स को यहाँ पे न्यूज़ फीड का नाम दे रहे हैं कि लॉटरी का मैसेज आ रहा है या स्पैम मैसेज आ रहा है। हमारे पास 100 मैसेज आते हैं तो शायद कोई एक लॉटरी को वाकई होता है, बाकी सारे स्पैम होता है, लेकिन उन 99 की वजह से भी हम बायस हुए होते हैं, बोलते हैं इसको भी ये भी स्पैम होगा, अगर लॉटरी कभी आती भी तो हम उसको भी किक आउट कर देते हैं। तो हमें ये मालूम करने के लिए कितने स्पैम है कितने लॉटरी है, वी शुड नो द रियल वर्ल्ड डेटा सेट, और नंबर ऑफ लॉटरी हमारे पास गिवन होना बहुत ज़रूरी है, और टोटल नंबर ऑफ वो भी गिवन होना ज़रूरी है। स्पैम कितनी है, लॉटरी कितनी है, दोनों में ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ये सब मालूम करने के बाद हम गोना कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी? ये सिर्फ नाम का फर्क है। ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इज सेम एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस पूरी को हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्यों कह रहे होते हैं? बिकॉज दिस प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन अनदर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम सर्टेन इवेंट इज डिपेंडिंग ऑन अनदर इवेंट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी मतलब यही होता है कि कंडीशन मतलब ये कि एक प्रोबेबिलिटी किसी और प्रोबेबिलिटी की कंडीशन पे किसी और प्रोबेबिलिटी के ऊपर कंडीशन है, किसी और प्रोबेबिलिटी कंडीशन पे डिपेंडेंट है, दैट इज व्हाई इट्स नोन एज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। नाउ व्हाट इज प्योर प्रोबेबिलिटी? प्योर प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे होते हैं, दैट्स ऑलवेज जो प्रोबेबिलिटी या जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे होते हैं टू एनी गिवन सिनेरियो, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारे पास प्योर प्रोबेबिलिटी कहलाती है। एंड टू नो दैट प्योर प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी। आप टोटल नंबर को डिवाइड कर दो फ्रॉम द नंबर ऑफ न्यूज़ फीड्स और यू कैन से यूनिवर्स, उससे हम लोग उसको कहते हैं प्योर प्रोबेबिलिटी। अभी हम स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चर में किस चीज़ को क्या बोलते हैं। We assume that we don't assume, this is actually known as pure probability. This is known as likelihood कि ये for example हमने यहाँ पे लिखा spam given that on lottery, ये हमारे पास likelihood chances है। ये हमारे पास जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे posterior probability थी, तो ये हमारे पास इस तरह बोला जा सकता है कि हमारे पास ये pre probability थी, एक post probability हो गई हमारे पास, एक pre probability हो गई कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि मैंने डाइस फेंका, अब मैं जो डाइस फेंक रहा हूँ, जो नंबर मेरे पास आ गया है उसको मैं दोबारा, अगर वो मेरे पास आ भी जाता है तो मैं उसको काउंट नहीं करने वाला। एज्यूम दिस,
मेरे पास 1 to 6 नंबर्स है, मैंने डाइस फेंका और मेरे पास आ गया 3 मेरे पास आ गया। मेरे पास प्रोबेबिलिटी ए के अंदर समझ लो आ गया है कि भाई ए अब मेरे पास अलग हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है 1 2 4 5 6। जो भी मेरे पास आएगा वो 1 2 4 5 6 के पास आएगा। तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज गिवन क्या हमारे पास 1 2 4 5 6, तो उसकी डिपेंडिंगली मैं मालूम कर रहा हूँ कि हमारे पास किसके आने के कितने चांसेस हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हो रहा हूँ यहाँ पे या ड्राई हो रहा हूँ तो प्लीज लेट मी नो। ऑल राइट, ओके, समवन सेइंग अबाउट मी ट्राइस इन उर्दू। ओके, अच्छा गाइस, एक चीज और कि अगर आप लोग एनोनिमस की जगह अपना नाम लिख के बिकॉज ऑप्शन होता है, अगर आप अपना नाम लिख के सेंड करेंगे एनी गुड क्वेश्चन, सो इट विल बी बेटर फॉर मी एज वेल कि मुझे ये मालूम हो जाएगा कि कौन क्या सवाल पूछ रहा है। यूजुअली ये आज का जो टॉपिक है ये इतना प्रैक्टिस में नहीं होता, ये मैथमेटिक्स, और ये भी मैंने बिल्कुल आधे घंटे पहले देखा कि आज नहीं बेचता और मैं फिर पूरी पूरी पीडीएफ तैयार की, क्योंकि मैं तो अक्सर खुद भी प्रोबेबिलिटी भूल चुका होता हूँ। दी रियल प्रोबेबिलिटी वैसे तो पता होता है लेकिन भूल चुका होता हूँ। अब किसी ने पूछा है व्हाट इफ द डिनोमिनेटर इज जीरो दैट इज प्रोबेबिलिटी इज जीरो। ओके, अब डिनोमिनेटर अगर हमारे पास जीरो हो तो क्या प्रोबेबिलिटी जीरो होगी? भाई अगर डिनोमिनेटर हमारे पास जीरो होगा तो प्रोबेबिलिटी होगी नहीं। डिनोमिनेटर जीरो का मतलब ये है कि हमारे पास पूरे इवेंट के अंदर जीरो है। अगर आप इस डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं जो पी बी की बात है, तो मतलब आप प्रोबेबिलिटी को ही जीरो कह रहे हो, और वो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? लेट मी शो यू। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा होता, वेर ए एंड बी आर इवेंट्स एंड पी बी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो ये एक बहुत ही वेट इक्वेशन बन जाएगी जो कि मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? मीन्स कि हमारे पास इवेंट भी है ही नहीं, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी भाई किसी दो सिनेरियोस के बीच में हो रही है ना, या मल्टीपल सिनेरियोस के बीच में हो रही है। इस सिनेरियो के बीच में आप कैसे इस सिनेरियो के दरमियान आप कैसे आप प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हो जब आपके पास है ही कोई एक चीज? अब आप बोल रहे हो कि भाई बताओ फॉर एग्जांपल दिस इज माय मोबाइल, और फॉर एग्जांपल लाइक इस मोबाइल को देख के बताओ कि इसमें कितना परसेंट मोबाइल है। तो कितना अजीब सी बात होगी कि आप एक मोबाइल को देख रहे हो और बोल रहे हो कि भाई इस मोबाइल के अंदर कितना परसेंट मोबाइल है। इस तरह का सवाल करना इट्स लाइक नहीं पता यार, 100% ही मोबाइल है। तो जब ये सिनेरियो होता है या जीरो वैल्यू हमारे पास आ रही होती है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं होती। प्रोबेबिलिटी हमेशा दो सिनेरियोस के बीच में होती है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे इतने स्कोर्स हैं और टोटल स्कोर्स मेरे इतने हैं, तो कितना मेरी परसेंटेज बनेगी? अब मैं बोलूं कि भाई मेरे ये स्कोर्स हैं और उस बंदे के इतने स्कोर हैं, या नहीं, ये खैर बहुत डिफरेंट एग्जांपल हो जाएगी। मैं इस तरह कह सकता हूँ कि मेरे पास एक बास्केट मैंगोज की है और एक बास्केट मेरे पास एप्पल्स की है, ठीक है ना। कुछ बास्केट कुछ मैंगोज जो है ये वाले बंदे खाएंगे और कुछ एप्पल्स जो है वही वाले बंदे खाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दोनों वो दोनों एप्पल भी खा रहे होंगे मैंगो भी खा रहे होंगे, जो कि हमारे पास खिलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। जो मैंगोज खा रहे हैं सिर्फ वो खिला रहे हैं इवेंट है, जो हमारे पास वो खा रहे हैं आई मीन एप्पल्स, वो हमारे पास इवेंट बी खिलाएगा, और उनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करना इज नॉट अ बिग डील। ओके, तो मेरे ख्याल है मैंने सब प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। अगर कहीं में गलती भी कर रहा हूँ सो लेट मी नो एज वेल, क्योंकि गलती के बिल्कुल चांस हो सकते हैं। आई एम नॉट अ मशीन, आई एम आल्सो अ ह्यूमन लाइक यू गाइस एज वेल। तो अगर सबके समझ में आ गया तो फिर हम बेस थ्योरम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे बाय यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलें इस तरफ, लेट मी नो गाइस। मैं जरा क्यों ना खोलूँ, लेट मी नो गाइस, शुड आई कंटिन्यू? Yeah, someone said the probability to have 7 from roll of dice example of zero probability. या अब देखें, अब जैसे हमारे पास डाइस के अंदर 6 वैल्यूज हैं, हमें पता है कि 1 to 6 वैल्यूज है। अब कोई हमसे पूछे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 क्या है, तो मीन्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, या फिर हमारे पास यूनिवर्स की वैल्यू होगी क्या, 7 है, ठीक है। अब सॉरी 6 है हमारे पास। अब कोई हमारे से पूछे कि 6 में से 1 to 6 के बैग में से कितनी दफा 7 आ सकता है, तो वो तो उसके तो वैलिड ही नहीं होगा ना। हम कहेंगे जाहिर सी बात है भाई 0 टाइम्स, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स 0 हो जाएगी, जो कि यूनिवर्स की ही लिमिट से ज़्यादा हो गया,
जो पूरे के तमाम यू कैन से सम ऑफ ऑल इवेंट्स की लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो उस सिनेरियो के अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स की बात है 0 आ जाएगी। ओके, कोई और क्वेश्चन है किसी को? एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? All right. So I think you guys, okay, yes. ओके सर अगर कंडीशन ज्यादा हो लाइक ए बी सी, तब कैसे बायस थ्योरम अप्लाई होगा? ऑलराइट, तो उस सिनेरियो में अगर हमारे पास मल्टीपल क्लास हो, क्लास तो हमारे पास नंबर ऑफ एन भी हो सकती हैं। बायस थ्योरम यूजुअली परफॉर्म ऑन टू क्लासेस, कभी भी मल्टीपल क्लासेस पर परफॉर्म नहीं किया जाता। और अगर आप नाइव बेस ही परफॉर्म कर रहे होगे तो नाइव बेस में दो तरह के नाइव बेस, दो तरह के बेस थ्योरम्स होते हैं। एक होता है गॉसियन बेस, एक होगा मल्टीनोमियल बेस थ्योरम। मल्टीनोमियल बेस थ्योरम जो होता है वो होता है मल्टीपल क्लासेस के लिए। तो अभी हम मल्टीपल क्लासेस के लिए नहीं कर रहे हैं, अभी हम टू क्लासेस के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकती है इस थ्योरम के थ्रू, बट दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरम। वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन दिखा दूँ उसकी, वो इस आई गेस इसी के थ्रू आगे कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है। लेकिन मल्टीपल क्लासेस के लिए अब नई बेस यूज नहीं करते मशीन लर्निंग फॉर मैथ्स। आई मस्ट शो यू मल्टीनोमियल, क्या नाम था? ओके, बेस बेस क्लासिफायर, मल्टीवेरिएट, सॉरी। ओके, मैं खुद ही भूल गया। हम आज गॉसियन नहीं करेंगे, नॉट मल्टीनोमियल। कहीं पे मल्टीनोमियल भी आ रहा है, कहीं पे मल्टीवेरिएट भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीनोमियल भी है और मल्टीवेरिएट भी। आई वाज नॉट रॉन्ग, थैंक्स टू नो दिस। एंड इफ यू सी हियर, तो ये तो दो ही क्लासेस है हमारे पास। होगा कुछ नहीं, या हियर यू कैन सी दिस, या हमारे पास हर जगह पे नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी। जहाँ हमारे पास ए भी आ रहा था, जहाँ हमें जो मालूम करना है, यहाँ पे x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा x4 करते करते बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजम्पशंस हमारी आगे निकल चुकी होंगी, जिसको हम बोल सकते हैं xn। अब अगर हमारे पास 3 है तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 4 हमारे पास 4 आ जाएगा। लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस बिकॉज दिस इज टोटली not such relevant in today's industries when it comes to machine learning. आगे जाके मे बी इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम उसको इस्तेमाल करें, मे बी। तो अब तक के लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन येस इन मैथमेटिकल टर्म्स इट्स ऑलवेज पॉसिबल। लेकिन आज जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं दैट्स गॉसियन नाइव बेस, जो कि सिंपली टू क्लासेस के ऊपर बेस कर रहा होता है। इफ़ यू आर हैविंग मोर देन टू क्लासेस, so you can implement it Gaussian knife based, 3 classes भी लोग कर लेते हैं। but if you are having so many multiple classes, so it's a good practice to use another algorithms like random forest, decision trees, k nearest neighbors and many more. ऑल राइट, प्रोबेबिलिटी यूज किस तरह करेंगे कोड में? सिंपली हम तो scikit-learn से लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डायरेक्टली इसको पढ़ते हैं। आई एम इन्वेस्टिंग सो मच टाइम टुडे। So find the probability of event A given that event B has already been occurred. जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे, हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन है हमारे पास। P probability event A given that event B has already been occurred. Then probability of event A and B, the event A intersection event B. Then we are having probability of event B. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। यहाँ पे हमारे पास ए की जगह बी आ गया और बी की जगह हमारे पास ए आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, बी इंटरसेक्शन ए आ गया। बस आप जब देखें तो वैल्यूज का हमारे पास चेंज हो रहा है। ये याद रखने के लिए हम करते हैं, लेकिन अगर हम देखें या हम एज्यूम करें तो हमेशा याद रखिएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी में और पी बी इंटरसेक्शन ए में टेक्निकली कोई खास फर्क नहीं होता until unless we are not working on sets, we are not working on ordered sets। तब तक यहाँ पे हमारे पास उसके अलावा हमारे पास इंटरसेक्शन में कोई खास फर्क नहीं होता। ओके, गोइंग बिलो, ऑर्डर्ड सेट का मतलब होता है कि सेट्स के अंदर जो ट्यूपल्स होते हैं। गुड क्वेश्चन। सेट्स में जो ट्यूपल्स होते हैं उनकी बात हो रही है। अदरवाइज वहाँ पे एक डिफरेंस आता है, वो भी एक रेयर सिनेरियो के अंदर। अदरवाइज इंटरसेक्शन में कोई खास फर्क नहीं है।
तो अब हम क्या करेंगे, इस पी प्रोबेबिलिटी बी को यहाँ पे ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे हम बिल्कुल मैथमेटिकली काम कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल वाला माइंड सेट यूज करना है आप लोगों ने कि प्रोबेबिलिटी बी को हम यहाँ पे मूव करके, अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी ए यहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम दो इक्वेशन को एक साथ लेके चल रहे हैं, थोड़ा साइंटिस्ट वाले वे में काम कर रहे हैं, नॉट इन स्कूल वे। नाउ शिफ्टिंग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू लेफ्ट हैंड साइड नहीं था, ये साइड था, मैंने जेड की डी की जगह गलती से जेड लिख दिया यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई हो गई। हम दो इक्वेशंस को यहाँ पे पैरेलल लेकर चल रहे हैं। सिंस वी ऑलरेडी नो दैट probability of A and B is equal to probability of B and A, जैसा कि मैं यहाँ पे अब तक कोई तकरीबन 6-7 दफा बता चुका हूँ कि probability A intersection B is already equal to probability of B intersection A, so we can assume कि ये दोनों equations को हम बराबर में ले सकते हैं। क्योंकि जब ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या मतलब हुआ कि ये भी किसके बराबर हुआ, इसके बराबर हुआ। Getting my point, what I'm saying? Because since these both are equal to this P intersection B, assume कि ये भी P A intersection B है, because they both are same, तो मतलब ये भी किसके बराबर हुआ, इसके बराबर हुआ। So therefore we can say that P A intersection B, चाहे हम ये लिखें या B intersection A लिखें, एक ही बात है। Therefore we can say that P A intersection B is equal to P probability of A given that B is occurred multiply by probability of B, किसके बराबर हुआ, probability of B given that event A is occurred multiply by probability of A। तो यहाँ पे हमारे पास ये और ये आपस में बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं, जो कि किसके इक्वल होते हैं, एक्चुअली इसी के इक्वल होते हैं। ऑलराइट, हो गया। नाउ वी कैन आल्सो से दिस कि अगर हम सब इसको मेंशन ना करें, दोनों बराबर है ना, हमें एक तो इक्वेशन चाहिए और एक इक्वेशन में हम एट अ टाइम सब सिंगल इज इक्वल टू को डील कर सकते हैं। तो नाउ वी फॉर्म इक्वेशन, क्या किया ना, सब सिंगल सिंपली इसको काट दिया यहाँ से और यहाँ पर हमने लिख दिया पी ए बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इट इज सो सिंपल। अगर आप समझें कि किस तरीके से हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिराइव बेस थ्योरम। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। अब ये आपके ऊपर है। अब नाउ ओपन योर ट्रिकी माइंड ऑफ मैथमेटिक्स। आपको मैंने बोला कि ये फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, इसको एक साइड पे ले जाओगे, बाकियों को एक साइड पे ले जाओगे, भाई ये इसकी इक्वेशन फाइंड कर ले। अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मुझे ये फाइंड करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई ये इसको इस साइड पे ले जाएंगे, आप डिवाइड करा देंगे यहाँ पे लाके, आप बोलेंगे भाई ये इसकी इक्वेशन है, कर लें फाइंड। सो गुड इज दिस। तो हमने क्या किया, सिंपली क्या किया, यहाँ पे फॉर इवेंट ए हम मतलब पी बी को यहाँ पे नीचे ले आए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके हमने डिवाइड करा दिया और यहाँ पे हमने और लिख दिया P of probability of event A given that event B has already been occurred is equal to probability of B given that event A has already been occurred into P probability of A over probability of B। या सिंपल अल्फाज में बोला जाए तो P A given that B किसके बराबर हो गया है, P B given that A के मल्टीप्लाई करने के बाद किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, P A से, और नीचे उसके क्या आ गया, P B आ गया। किस तरीके से आया, सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट कि वहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B उससे मल्टीप्लाई हो रहा था, हम उसको यहाँ पे नीचे ले आए, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B आ गया। हमारे पास इसकी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है जिसके थ्रू हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज गिवन हो। सेम फॉर द इवेंट B, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B मालूम करना चाहते हैं तो हम सिंपली इस इक्वेशन के अंदर से इसको बिल्कुल साइड पे लेके जा सकते हैं और इसको यहाँ पे हो रहा है, तो मतलब ये आप यूँ कह लें कि ये जो पी बी है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पी है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पी बी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया है और पी है यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो गया है। जिंदगी में अगर आप कभी फॉर्मूला भूल भी जाए तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये डेरिवेशन थी जो आज हमने करी है, मैथमेटिकल डेरिवेशन, साथ साथ मैथमेटिकल डेरिवेशन भी समझ गए कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हम फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हम फाइंड कर रहे हैं। ये था पूरे के पूरे नई बेस्ट क्लासिफायर का फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा मॉडल चलता है।
दिस शुड बी वेरी नॉन. व्हाई? बिकॉज इंटरव्यू में आप जब मशीन लर्निंग इंटरव्यूज में आप जब जाते हैं, सो दे यूजुअली आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, स्पेशली इन नई बेस. हालांकि इंडस्ट्री में यूज नहीं होता, लेकिन इससे ये अंदाजा हो जाता है कि आप मैथमेटिकली या रिसर्च बेस्ड कितना इंट्यूट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू मशीन लर्निंग. सो दिस डंडा मीन्स गिवन दैट. जो हम डंडा जगह जगह यूज कर रहे थे, इसका मतलब गिवन दैट होता है. तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया या अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? लेट मी ओपन Q&A. Yeah, thanks for telling me, Hassan Azhar, that it's called the law of total probability, जो कि यूज हो रहा है किसमें, बेस थ्योरम के अंदर. ओके. ओके. Someone asked that we are finding, Mohammed Awais asked that we are finding probability of spam, given that lottery is given. This is depending on probability of lottery over spam. So how can we find it? All right, so let me explain this as well. और क्या सवाल है? Okay. All right. Ashish Adhikari has already got his answer. Yeah, posterior is directly proportional to the likelihood, of course. ओके. तो मैं जो रिपीट करने को कहा है मैं वो रिपीट कर देता हूँ. ऑल राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास ये ऑफ कोर्स सी बात है कि ये जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज ये हमारे पास अगर कांस्टेंट हो. लेकिन सोचने वाली बात है, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास ये चेंज तभी होगा जब हमारे पास पी स्पैम चेंज होगा, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम चेंज होगी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉटरी चेंज होगी. प्रोबेबिलिटी मतलब अगर हमारे पास इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो इसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, और जब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वाला हिसाब ही नहीं है. कोई भी चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहती. एवरीथिंग इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ऑल राइट. सो एक दफ़ा दोबारा समझा दूँ, एक रिकैप दे दूँ. लोग कह रहे हैं एक दफ़ा रिकैप दे दें. So all right, so we were having this equation from conditional probability of even A given that B is equal to probability of A intersection B over probability of B. सेम इक्वेशन हमारे पास probability of B given that A की भी होती है, बस क्या होता है जहाँ पे हमारे पास A होता है वहाँ पे हमारे पास B आ जाता है, जहाँ पे हमारे पास B होता है वहाँ पे हमारे पास A आ जाता है. A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A हो, दोनों हमारे पास एक ही बात होती है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन A है, क्या पता हमारे पास हमें A इंटरसेक्शन B की वैल्यू गिवन ना हो, किसी और चीज़ की वैल्यू गिवन हो, या इसको अगर हम मजीद थोड़ा इलेबोरेट करें कि भाई किस बेस पे आप A इंटरसेक्शन B मालूम कर रहे हो, तो उसका तरीका क्या होता है कि हम बेस थ्योरम जाते हैं. अगर हमारे पास ऑल्टरनेट वैल्यूज मालूम हमें अवेलेबल होती हैं, व्हाट इज बेस थ्योरम? उस बेस थ्योरम को हम खुद डिराइव करेंगे. बेस थ्योरम किस तरह डिराइव करेंगे? दैट शिफ्टिंग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बेस थ्योरम बताते हैं कि भाई ये है ये है, और डायरेक्ट क्लासिफाई करवा देते हैं. आधे आधे घंटे में फारिग हो जाते हैं. लेकिन फॉर मी यू हैव टू लर्न दिस ऑल. Now shifting marginal probability to left hand side. यहाँ पे हमारे पास probability of A थी, इसी तरीके से हमारे पास probability यहाँ की probability of B यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ की probability of A यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करा देंगे. सो नीचे अगर हम यहाँ बात करें तो हमने नीचे यही काम किया है. नीचे डिनोमिनेटर खाली हो गया, मतलब नीचे इसके 1 ही हो, और ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि सिंस पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, देयरफॉर वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं बेसिकली कि ये क्योंकि हमारे बराबर थी, तो हम इस साइड को, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को बराबर ले रहे हैं. व्हेन वी आर हैविंग सेम साइड ऑफ बोथ इक्वेशन, सेम इफ यू आर हैविंग सेम साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस, मतलब हमारे पास दोनों इक्वेशन की जो साइड है, फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड है, दोनों की सेम आ रही है, तो हम दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं, हम दोनों को बराबर ले सकते हैं. दैट्स अ सिंपल अलजेब्रिक टेक्निक, और यू कैन से कंसेप्ट.
तो यहाँ पे हम ले रहे हैं P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, क्या कि हम दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को आपस में इज इक्वल टू ले रहे हैं। पहली लेफ्ट हैंड साइड इधर आ गई है, इधर देखें अगर आप तो इधर आ गई है, और दूसरी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इधर आ गई है। हमने दोनों को बराबर ले लिया, इसको भले से आप ऐसे निकाल दें, हम इसकी कोई जरूरत नहीं है अब। तो सो वी कैन से लाइक दिस एज वेल, P probability of event A given that B is occurred multiply by probability of B is equal to probability of event B given that A has occurred multiply by probability of A। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब ये जब दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम इसको अगर हमें ये वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ जितनी भी वैल्यूज होंगी हम दूसरी तरफ भेज देंगे, और अगर हमें ये वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, इसके साथ जितनी भी दूसरी वैल्यूज होंगी हम उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग इन द बिलो फॉर्म, कि हमारे पास जब हमें P प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B मालूम करना था, तो हमें उसके जितने साथ जो मल्टीप्लिकेंट्स थे, जो फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ B थी, वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गई हमारे पास, और इस सेम वाइस वर्सा फॉर दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A इज अकर्ड। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबको समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल मूव टू Alright, so someone is saying that we are finding, OS is saying that we are finding P spam lottery and this is depending on P lottery spam. So how can we find it? Because both are depending on each other. Okay. यूजुअली होता है ये कि Y डिपेंडेंट होता है और Y डिपेंडेंट होता है और X इंडिपेंडेंट होता है। ठीक हो गया। सेम कहानी हमारे पास यहाँ पे भी होगी कि यहाँ पे अगर हमारे पास x की वैल्यू फॉर एग्जांपल इसको एज्यूम करते हैं कि हमारे पास x है पूरा का पूरा, x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। बट गिवन दैट सेम इक्वेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं यहाँ पे अगर नोटबुक क्रोम में खुलती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि मुझे दूसरी टैब पे शिफ्ट ना करना पड़े। ऑनलाइन नोटबुक, इज देयर एनी नोटबुक? ओके, लेट मी सिंपली गो टूवर्ड्स डॉक, ताकि मैं एक्चुअली सिंपली तरीके से समझा दूँ। ओके, माय क्रोम इज वर्किंग सो स्लो। वेयर इज डॉक, वेयर इज डॉक, वेयर इज डॉक, वेयर इज डॉक, ये हियर इज द डॉक। ओके, तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ले लूँ जरा यहाँ पे, जस्ट वेट 2 मिनट्स। टाइम हमारा बिल्कुल एंड तक पहुंच चुके हैं, अभी पूरा मॉडल ट्रेन करना है, सो वी हैव टू मूव इट लिटिल बिट क्विकली। y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और बड़ा कर लूँ, y इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन है 3x, या 3x हमारे पास ये इक्वेशन है। अब अगर हमारे पास x इज इक्वल टू आता है 1 2 3, तो y भी हमारे पास क्या आता है, y हमारे पास आता है लाइक 3 6 9। अब हमारे पास ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है। अब जब हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x, तभी तो हमारे पास ये वैल्यू जनरेट हो रही है y की। x इंडिपेंडेंट है, x अपने मौजूद में चल रहा है कहीं पे भी, ऐसा हम कहते हैं और ऐसा वाकई होता है। लेकिन क्या अगर मैं यहाँ पे लिखूं y इज इक्वल टू लाइक 18 और हमारे पास ये इक्वेशन है, तो क्या हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स, क्योंकि x एक तरीके का खुद, जब हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम x की वैल्यू अपना फाइंड कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 18 इज इक्वल टू 3x, और फिर हम कर देंगे कि भाई x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3, और फिर हम कर देंगे x इज इक्वल टू 6। सिंपल इज दैट। तो एक इट्स काइंड के वो सेम इक्वेशन के ऊपर हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, तो सेम इक्वेशन के ऊपर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ b भी फाइंड कर सकते हैं। और एक तरीके से दोनों, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन सेम है, हम अभी मशीन लर्निंग पे गई नहीं है, अभी हम सिंपल अलजेब्रा पे, इक्वेशन हमें मालूम है। सो विद अ नोन इक्वेशन हम किसी भी वैल्यू बाकी सिनेरियो से फाइंड कर सकते हैं। दैट्स अ सिंपल मशीन अलजेब्रिक थिंग। मशीन लर्निंग में तुम्हारे पास क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है, जब हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, फिर तब भी वो अपनी ही इक्वेशन से जो उसने बनाई होती है अपने पास मॉडल के अंदर, हम अपनी गिवन एक्स की वैल्यू से वाई प्रिडिक्ट कर रहा होता है। इक्वेशन जरूरी नहीं कि हर दफा 100% एक्यूरेट ही हो, कभी कोई ना कोई फर्क होता भी है, बट नो वरीज फॉर दैट। कभी आप आर्टिफिशियल डाटा जनरेट कीजिएगा और क्या कीजिएगा कि
x को मल्टीप्लाई कर दें 2 4 6 लाइक, और फॉर्मूला बना दें कि भाई एक्सेल के ऊपर y इज इक्वल टू 3x + 9 और ब्रैकेट करते हुए नीचे ले आइएगा, तो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट डाटा होगा विद नो रेजिडुअल्स। तो मशीन लर्निंग बिल्कुल उसी एक्यूरेट इक्वेशन में पहुंच भी जाएगा, आपको बिल्कुल 100% या 99% एक्यूरेट रिजल्ट्स भी दे रहा होगा। लेकिन अगर आप, वही वाली बात आ गई ना कि अगर आपके पास x की वैल्यू गिवन नहीं है और y की वैल्यू गिवन है और आपके पास इक्वेशन नोन है, सो यू कैन आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ x। सो मूविंग फर्दर, okay, going further, okay, all right. Naive based classifiers are collection of classification. What happened to it? Okay, naive based classifiers are collection of classification algorithm based on Bayes theorem. It is not a single algorithm but a family of algorithms where all of them share a common principle. Every pair of features being classified is independent of each other. For example, a fruit may be considered to be an apple if it is red, round, and about 3 inches in diameter. Even if these features depend on either other upon the existence of the other feature, all of these properties independently contribute to the probability. blah 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 blah, बात आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे थ्योरी पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। भाई क्या रहा है ये, हमारे पास फॉर एग्जांपल एप्पल्स हैं, हमारे पास इसी तरीके से ऑरेंजेस भी हैं। अब ये इक्वेशन किस तरह इम्प्लीमेंट हो रही है, ये तो आप बिल्कुल भी मुझसे मत पूछिएगा। अगर आप ये पूछ चलेगा तो एक हफ्ता गया कि ये इक्वेशन के थ्रू किस तरह कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो जाएगा। मॉडल क्या कर रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 क्लासेस आ गई, वही एप्पल ले लेते हैं और दूसरा फ्रूट आप ले लें ऑरेंज, दोनों हमारे पास फ्रूट्स हैं। अब उनके मल्टीपल फीचर्स को देखते हुए क्लासेस डेवलप कर रहा होगा और उनके दरमियान वन क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस होंगी जो उसको वो फीचर्स दे रहा होगा। 2 क्लास आ गई ऑरेंज और एप्पल, और उनके मल्टीपल फीचर्स के दरमियान क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहा होगा। So these all properties are basically independently contributing to the probability. अब हैं दोनों फ्रूट, लेकिन एक फ्रूट एप्पल भी हो सकता है, एक फ्रूट ऑरेंज भी हो सकता है। ये काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग है। ये मतलब मॉडल बड़े डिफरेंट तरीके से लर्न कर रहा है, सिर्फ सिंपल बेस्ड ऑन देयर इक्वेशन, और इक्वेशन कौन सी है, बेस थ्योरम की इक्वेशन है। ये भी एक वजह है कि काफ़ी नई बेस क्लासिफाई करा जाता है कि भाई ये बहुत नई है, ये बहुत बोला है ठीक है, तो इस तभी इसको ये कहा जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे इतना अब तो खैर इतना यूज़ नहीं होता सिवाय इंटरव्यूज़ के, लेकिन फिर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और लेट से पहले ही किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, अभी तो खैर नहीं हो रहा। पहले यूज़ हो रहा होता था स्पैम फिल्टरिंग के लिए, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए, सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए। रिकमेंडेशन सिस्टम ऐसे बहुत पुअर बनते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी इसमें हो रहा था। स्पैम फिल्टरिंग में क्या हो रहा है कि भाई फ्रॉड है नहीं है, इस तरह का काम जो अगर हो रहा है स्पैम डॉट जिसकी एग्जांपल मैंने दी। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था कि भाई टेक्स्ट के अंदर क्लासिफाई करना, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास टेक्स्ट है, उसमें से मैं बोलूँ कि भाई जो भी अल्फाज आपने मशीन लर्निंग के बारे में कहा उनको अलग कर दो, और जो अल्फाज आपने वेब डेवलपमेंट के बारे में कहा उनको अलग कर दो, तो उन दोनों को डिफरेंटली क्लासीफाई कर देगा। इसी तरीके से सेंटिमेंट एनालिसिस था, किस तरह के जज्बात आ रहे हैं, किसी में गुस्सा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी, लाइक किसी में खुश है, किसी में अफसोस है, किसी में अफसोस ज़्यादा है। तो ये चीज़ें के लिए भी नाइव बेस काफ़ी यूज़ हुआ है इंडस्ट्री के अंदर, और वहाँ पे जब यूज़ हो रहा होता है तो इतना आसान नहीं होता जिस तरह आसान हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं, प्रोडक्शन में जाके यही एल्गोरिथम आपको सरदर्द बन जाता है। तो ये इसकी कुछ चीज़ें थी, और ये बेस थ्योरम ही यूज़ कर रहा होता है टू क्लासीफाई एवरी सिंगल डिफरेंट क्लासेस। यहाँ पे हम सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। कौन कौन सी लाइब्रेरी हमारे पास, import pandas SPD for data input output, importing numpy for uh, numpy array and everything else, sklearn.naivebase for importing Gaussian NB। Gaussian NB क्या हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारे पास Gaussian, alright, Gaussian naivebase, alright। तो ये हमारे पास बेसिकली जो मशीन लर्निंग मॉडल आज हम यूज़ करेंगे, ये वो फंक्शन है जो हम sklearn.naivebase में से इंपोर्ट कर रहे हैं। देन वी आर इंपोर्टिंग 2 डिफरेंट फंक्शन, ट्रेन टेस्ट प्लेट फ्रॉम सेम लाइब्रेरी। मैंने बहुत लंबा करके इसको लिख दिया, डोंट वरी अबाउट दैट। ट्रेन टेस्ट प्लेट हम किस में से इंपोर्ट करा रहे हैं, sklearn.model सेक्शन से, ताकि आप डाटा को स्प्लिट कर सकें। सेम फॉर क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, सेम फॉर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। आगे देखिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बिल्ड करेंगे। एक्यूरेसी स्कोर आज हम लॉग कर्व नहीं बना रहे बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, कल इंशाल्लाह हम लॉग कर्व भी बनाएंगे। एंड देन फॉर प्री प्रोसेसिंग, मेरा नहीं ख्याल से प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत थी, बट स्टिल वी विल सी दैट लेटर।
क्योंकि मैं एक नोटबुक से कॉपी करके दूसरी नोटबुक रेडी कर लेता हूँ, सो कुछ चीज़ें पुरानी रह जाती हैं। सो ऑल राइट, जस्ट फर्स्ट इंपोर्ट डाटा। आज हम उसी डाटा सेट पे काम करेंगे, कल हम नए डाटा सेट पे काम करेंगे। आज क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारे पास फीचर एक्सप्लोरेशन का टाइम बिल्कुल नहीं रहा, 9 तो ऑलरेडी बजने वाला है। सो इफ़ यू सी हियर, मैं फिर ड्राइव से डाटा उठा रहा हूँ, ड्राइव मेरी ऑलरेडी माउंट हुई है। डेटा सेट हमारा वही है, क्रेडिट डेटा जो हमने के नियरेस्ट नेबर में इस्तेमाल किया था, और जो अगर के नियरेस्ट नेबर में नहीं था इन केस, तो बताया तो डेटा सेट में हमारे पास क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास इनकम आ गई है, एज आ गया है, लोन आ गया है, एलटीआई आ गया है, डिफॉल्ट आ गया है, क्लाइंट आईडी आ गई है। अब हमारे पास इसमें से कौन से यूजफुल फीचर्स हैं? ऑफ कोर्स हमारे पास इसमें से 3 यूजफुल फीचर्स हैं, जो कि हैं इनकम, एज एंड लोन। वाई दीज 2 फीचर्स आर नॉट यूजफुल? क्योंकि किसी इंडेक्स नंबर से आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन डिफॉल्टर रहा है। ये डिफॉल्ट है, वो ये बता रहा है कि कौन कौन बंदा डिफॉल्ट रहा है। जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब वो डिफॉल्टर था, इट वॉज 2। जो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब वो डिफॉल्टर नहीं था। अब लोन टू इनकम का जो हम रेशियो निकाल रहे हैं, वो निकालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। या तो हमारे पास ये 3 चीज़ें ना होती तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते, लेकिन हमारे पास इनकम भी है, लोन अलग से मौजूद है, तो वी डोंट नीड दिस एलटीआई एज वेल। हम मशीन लर्निंग मॉडल में पूरा पूरा डालेंगे, एंड मशीन लर्निंग मॉडल कैन एक्सेप्ट these two feature parallelly, or it can understand every single thing. Lol, my runtime was disconnected. I don't know why. Okay, so it's reconnecting. अभी रिकनेक्ट हो रहा है, इट्स मीन्स कि इसको 1 घंटा हो गया खुले हुए। ये तभी होता है जब इसको 1 घंटा हो जाए खुले हुए और कोई काम ना हो रहा हो। कभी कभी इट्स अ बग इन गूगल्स कोलैब। Sorry to say, Google. All right, so we are importing this data set. We have already explored this, or data.shape. ओके, हमारे पास भाई 6 कॉलम्स हैं हमारे पास टोटल, और 2000 रोज, एंड वी हैव 2000 रोज। नाउ वी गोना परफॉर्म फीचर एक्सट्रैक्शन। व्हाट वी गोना डू, हम डेटा का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, डेटा डॉट फीचर्स। अगर हम ना भी चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि सब फीचर्स में ले लें, एंड देन वी गोइंग टू से टारगेट। टारगेट में हमारे पास क्या है? डेटा डॉट डिफॉल्ट, उसका एक सिंगल कॉलम, इसमें हमारे पास पूरी लिस्ट है इनकम की, एज की, लोन की। बाकी तमाम फीचर्स को हमने क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ पे भी हम डेटा हटा देते हैं। मुझे अच्छा ही लगता है ऑब्जेक्ट बनाना, पता नहीं क्यों। एक दफ़ा बता देता ताकि आप लोगों को पता हो कि दोनों का मतलब एक ही है, दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं। सो हेयर वी जस्ट परफॉर्म दिस। हमने फीचर्स के अंदर इनकम, एज, लोन ले लिया, टारगेट के अंदर डेटा डॉट डिफॉल्ट ले लिए। अगर आप चेक करना चाहें तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, सिंपली राइट दिस। हमारे पास पूरा ही आ गया, एंड इफ यू सिंपली राइट दिस, ये तो डाटा हमने लिखा था, ये पुराना डाटा जो हमारे पास जिसमें 6 कॉलम्स थे। तो आपने देख लिया कि हम जब डाटा सेट यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर हमारे पास ये कॉलम्स जो हमने एक्सक्लूड किए हैं वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम टारगेट लिखें तो हमारे पास सारी उसी फीचर से कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट वैल्यूज आ चुकी होंगी। ऑल राइट, अब ये इतने से बुरे फॉर्मेट में क्यों दिखा रहा है? सो खैर, एनीवेज, नो वरीज फॉर अस। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको ट्रेन करेंगे। मॉडल में हमने लिया गॉसियन एनबी, यहाँ हम कर रहे हैं मॉडल डॉट फिट। प्रिडिक्शंस ले लिया हमने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके। और आज आप लोगों का एक टास्क होगा जो कि मैंने सोचा था देने के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए भी टास्क था आज का, तो वो मैं भी करूँगा और आप लोग भी करेंगे, और वो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। सो वी हैव ऑलरेडी ट्रेन दिस मॉडल, और अगर प्रिडिक्शंस भी हमने ले लिए, कोड पे बहुत तेजी से भगा दिया। उसकी वजह ये है क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पूरा कोड ही समझ में आता है। अब इस प्रोडिक्शन में हम देख सकते हैं हमारे पास इतना बड़ा एरे है, अबाउट ऑफ लेस देन 2000 वैल्यूज, जिसके अंदर हमारे पास 2000 भी नहीं है, मतलब 25% ऑफ 2000, मतलब 500 वैल्यूज है हमारे पास। क्योंकि हमने डेटा को स्प्लिट किया था तो वो 25% में स्प्लिट हो गया डेटा। अब इस ट्रेन सेट के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1500 वैल्यूज थी, एज यू कैन सी हियर विद 3 कॉलम्स, एंड 1500 वैल्यूज with 1 कॉलम हेयर। यहाँ पे हमने उसको फिट किया, और अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास फीचर टेस्ट था, जो मॉडल को हमने दिखाया ही नहीं। फीचर ट्रेन तो वो था जो हम जिस पे हमने मॉडल को ट्रेन किया, अब फीचर टेस्ट जो हमने मॉडल को दिखाया नहीं, हम उससे प्रिडिक्शन स्टोर करा रहे हैं। इसको समझाने के लिए इसको एक नया नाम देते हैं आज, वाई प्रेडिक्ट। ठीक हो गया?
और नीचे आते हैं, इसको भी बोलते हैं वाई प्रिडिक्ट। तो अब दोनों को रन करते हैं और इसको भी रन करते हैं। बात एक ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रिडिक्शंस हैं क्या। ये हम वाई प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दैट वाई प्रिडिक्टेड वाई बेस्ड ऑन गिवन एक्स। कौन सा एक्स? जो भाई टेस्ट सेट था हमारा। अब जो तो उसको पता है ऑलरेडी से मॉडल ट्रेन करने में, उसकी प्रिडिक्शन ज़्यादा अच्छी दे देगा, तभी हम टेस्ट सेट देकर उसको ट्रेन हमने चेक किया कि कितना अच्छा है ये। ऑल राइट, सो अगर हम टारगेट टेस्ट और प्रिडिक्शंस का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डेवलप करें, ओके सो करके देख लेते हैं भाई। तो अब यहाँ प्रिडिक्शन से हमारे पास एरर आएगा क्योंकि हम नाम चेंज कर दिए। तो यहाँ वाइब्रेट कर देते हैं और यहाँ पे भी वाइब्रेट कर देते हैं। तो हमारे पास 0.93 एक्यूरेसी आ रही है और यू कैन सी कंसीडर मैट्रिक्स हमारे पास। हम देख सकते हैं कि इस डाटा सेट के ऊपर नई बेस कुछ जगहों पे इतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना अच्छा के नियरेस्ट नेबर काम कर रहा था, क्योंकि वो तो बहुत थोड़ा पावरफुल है लेकिन वो स्लो है नई बेस की नस्बत। ये दोनों ही बहुत बोले एल्गोरिथम्स हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो है इससे, लेकिन उसने काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट दिए हुए थे। इसने 93% एक्यूरेसी दी है, मैं वो 98% एक्यूरेसी दे रहा था। अगर जो के नियरेस्ट नेबर में नहीं थे तो उनको मैं जरा दिखाता चलूँ कि मैं कौन से एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ। सिंपली गो टू दिस एंड सिंपली गो टू दिस रिपोजिटरी। रिपोजिटरी के अंदर ये फोल्डर है के नियरेस्ट नेबर, और फिर यहाँ पे आ जाए। डेटा सेट यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, उधर भी पड़ा हुआ है, और ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने के अंदर हमेशा की तरह। ओके, won't take some time, now it's saying something went wrong, उसको भी नहीं पता क्या रॉन्ग हुआ। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एज फार आई नो 98% एक्यूरेसी दे रहा था जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज के अंदर है। तो इस डेटा सेट के ऊपर के नियरेस्ट नेबर ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था। इसको हम विजुलाइज कर लेते हैं बाय यूजिंग सीबॉन। हमने इसका हीट मैप डेवलप कर लिया। हाउ वी डेवलप हीट मैप? बाय सिंपली पासिंग दी मैट्रिक्स। अच्छा, ये प्रिडिक्शन में चल तो गया क्योंकि हम प्रिडिक्शन की वैल्यूज को ऑलरेडी स्टोर्ड थी, बट नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बाय प्रिंट दिया हमने। यहाँ पे भाई इसने बोल दिया कि 431 हमारे पास वैल्यूज हैं, यहाँ 10 वैल्यूज हैं, यहाँ 25 वैल्यूज हैं, 34 वैल्यूज हैं। ये अच्छा लग रहा है, क्लाइंट को दिखाने को वो अच्छा लगता है ये। सो नाउ यू कैन सी। अच्छा, यहाँ पे आपको इससे अंदाजा हो जाया करता होगा कि इसको देख के कि सी बॉर्न इज एक्चुअली यूजिंग मैटप्लोट्लिब फॉर इट्स विजुअलाइजेशन। तो जिस तरह मैंने बताया कि जब तक मैटप्लोट्लिब आप यूज़ नहीं करोगे तब तक आपके पास मैटप्लोट्लिब इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक आपके पास सी बॉर्न भी काम नहीं कर सकता। सो आई एम प्रीटी मेक श्योर लेट मी प्रीटी मेक श्योर कि आपको सब समझ में आ गया होगा। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस। वी स्टिल हैव सम 10 मिनट्स एंड आई नो मैं बहुत तेजी से मैंने घोड़ा भगा दिया। सो प्लीज लेट मी नो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो। Alright, automatic saving failed. These files were updated remotely or in another tab. भाई मेरे किसी और कंप्यूटर बैठ के इस टैब को ना खोले प्लीज। Alright. Okay, there is any chance I can get recordings of previous sessions because I signed up today? Yeah, absolutely. Okay, let me show you on YouTube. Meanwhile, जो दूसरे students हैं, please मुझसे questions कर लें। Okay, my net is getting slow. This is a great example of mine. Okay, and क्या सर्च कर रहा था मैं भी भूल गया। DSCSUET and simply have to search like this. ये हमारे पास हमारा चैनल आ गया है। We have very low amount of videos क्योंकि हम यहाँ पे सब अपनी रिकॉर्डिंग्स वेबिनार रिकॉर्डिंग डालते हैं। हम अपने फिजिकल इवेंट की वीडियोस यूजुअली नहीं डालते इतनी, लेकिन हमारे पास तमाम वेबिनार रिकॉर्डिंग 1 से लेके और 11 तक ऑलरेडी अवेलेबल है। आज की विद इन 3 to 4 आवर्स आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। टीम्स में बग है जो कि 2 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है फॉर लाइव इवेंट्स ओनली। तो ये मसला है, वरना ये हम फ़ौरन डाल दें। ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चंस? ऑलराइट गाइस, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए।
कल ओके, तो टुमारो वी विल लर्न डिसीजन ट्रीज क्लासिफिकेशन. हम लोगों ने डिसीजन ट्री रिग्रेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट वी हैव नॉट लर्न डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन. सो टुमारो वी विल लर्न डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन. और डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज ही क्लासिफिकेशन में होते हैं, एंड दे आर प्रीटी कोनेटेड. So we'll see that tomorrow. I will try to grab some different data set, इंशाल्लाह. और अगर टाइम मुझे मिला तो मैं प्री प्रोसेसिंग उसमें डाल दूंगा. और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कल की वर्कशॉप इसी तरीके से टफ रखेंगे. अब थोड़ा सा टफ रखना चाहिए ना, बहुत आसान आसान वर्कशॉप्स दे दी हैं. अब थोड़ा टफ लेवल पे आएंगे, बिकॉज आगे जाके हमें रीइंफोर्समेंट को भी हाथ लगाना है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी एक दिन के लिए हम हाथ लगाएंगे. यू कैन से डीप लर्निंग को हम हाथ लगाएंगे. हाथ इसलिए लगाना ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा डीप लर्निंग का, उसमें कितना मज़ा आने वाला. राइट, उसके अंदर सारी वर्कशॉप मैं नहीं कराऊंगा, मे बी 6 to 7 वो उसमें स्ट्रिक्ट ट्रेनर्स होंगे, एंड यू विल सी दैट. ओके, सेम पर्सन आस्क 2 questions multiple times. Yes brother, you can access videos. मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ. All right, guys, any further questions or shall I move towards the end? We still have 5 minutes. You can ask me any question if you want. All right, all right, all right. Okay, so guys, if you are not having any questions, so we'll end today's class. आज बहुत कम क्वेश्चन है, सवाल तो करो, नहीं तो भूल जाओगे सारा. Discord server and WhatsApp group link. Okay, that's okay. Let me give you WhatsApp group as well. Okay, and give you Discord link as well. Okay. Discord का link मुझे जिंदगी में कभी याद नहीं रहा, तो अब कैसे याद हुआ? Discord. I will open my Discord और मैं आपको कम्युनिटी का लिंक शेयर कर देता हूँ दोबारा. मैं इसको रोज कॉपी करके रखा करूँगा, रोज शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो. एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज गाइस? जितनी देर में मैं डिस्कॉर्ड पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, उतनी देर में आप लोग सवाल पूछ लें, और आई विल एंड टुडे सेशन बिकॉज आई एम ऑल्सो टू टायर्ड टुडे, प्रीटी टायर्ड. ऐसा तो ना करो यार. सॉरी, इसके अंदर एक ये बहुत बड़ा चक्कर है, जो कभी एक्सपायर ना हो वही लिंक देना होता है इसमें. जनरेटेड, एंड लेट मी गिव यू द लिंक टू दिस सर्वर. समवन इज सेइंग कि आज बहुत जल्दी पढ़ा दिया आपने, मेरे सर के ऊपर से गुजर गया. सो उसकी वजह ये है कि आज का एल्गोरिथम वाकई मुश्किल भी है. उसकी मुश्किल इस लिहाज से है कि मैथ्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. मैं चाहता तो उसको 2 दिन में डिवाइड कर भी सकता था. तो अगर आपको वाकई कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कॉर्ड पे मालूम कर सकते हो, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आपने हो सकता है प्रोबेबिलिटी में पढ़ी ना हो कभी. सो यू कैन लर्न प्रोबेबिलिटी ऑन यूट्यूब, या मेरी वीडियो दोबारा देख लीजिएगा फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, पॉज करके देखते रहिएगा, सॉल्व करिएगा बाय मैथमेटिकली, और रिसर्च करें. मैं बेसिकली यहाँ पे आपको रोज किक स्टार्ट देते ही इसलिए हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि आप सब मुझे ही देख के, you should learn from multiple places as well. I'm not denying it, और I'm not like that type of teacher कि भाई मेरा ही पढ़ो, कहीं और से नहीं पढ़ो, कहीं से ही पढ़ लो. So try after this, और अगर कोई specific question समझ में नहीं आया, so you can ask me right away.
मॉडल यूज करना मशीन लर्निंग का इतना मुश्किल नहीं था, मुश्किल सब एक ही चीज थी, वो थी मैथ्स। मैथ्स समझ में आएगा तो सब बिजी हो जाएगा, फ्रेश होकर दोबारा वो पीडीएफ पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। सर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी ऐसी होती है, मोर कॉम्प्लिकेटेड, इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। अनटिल अनलेस आप सेल्फ ड्राइविंग कार या रॉकेट लॉन्च करने जाए, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मशीन लर्निंग के अंदर, बल्कि इससे भी कम कॉम्प्लेक्स में होती हैं ये तो। हाँ, अगर आप मेडिकल में जा रहे हैं जिसका आपको कुछ नहीं मालूम, तो फिर आपको पढ़ना पड़ता है, लाइक वी हैव बिल्ड वन सोल्यूशन इन रिलीफ मी, तो वहाँ पे तो वी हैव टू स्टडी मेडिकल एज वेल, वी हैव टू स्टडी बायोलॉजी एज वेल फॉर दैट। सो guys, any further question? 1 minute left for ending today's workshop. ये मैं काट दूंगा, मैं रोज कटवाना भूल जाता हूँ, आखिर का आज का कटवा दूंगा, because it's too gap, don't need to be uploaded on YouTube, that's all informal. Alright, let me मैं व्हाट्सएप का लिंक ना आपको डिस्कॉर्ड में शेयर कर दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू ओपन माय व्हाट्सएप राइट नाउ, या कर लेते हैं, अभी अभी ओपन कर लेते हैं, वेट, let me see. All right, so ग्रुप 5 में थोड़ी जगह है, यहाँ से आपको इसमें आपका लिंक शेयर करता हूँ, जो कोई ऐड होना चाहता है तो वो, और ऐड नहीं है, कोई फेसबुक से आ गया है, so he or she can be added into this group. All right, so I'm sending you the group invite link. I have also shared the WhatsApp invite link, you can access anytime. All right guys, no questions, so if no, so I will end. Understood. मैथ्स आसान थी, लेकिन मैथ्स कोड में कहाँ अप्लाई हुई? राइट, तो सर मैथ्स कोड में यहाँ अप्लाई हुई है, सिर्फ इस जगह पे। ये अगर मैं आपको करवा दूँ ना, मैथ्स के थ्रू मॉडल बनवा दूँ, तो आप लोग कल से पढ़ने नहीं आएंगे, अगर मैं आपको मॉडल बनवाना शुरू कर दूँ मैथ्स के थ्रू। ये इसके पीछे इतनी पहाड़ 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 इतनी कोडिंग होती है, तो ये वो होते हैं जो बेसिकली मॉडल इन्वेंट कर रहे होते हैं, ये होती है एडवांस एआई मास्टर क्लास। अभी ये है बिगनिंग, अभी हमें ये मालूम है कि इस मशीन लर्निंग मॉडल के बैकएंड में ये चल रहा है और हम तभी इसको यूज कर रहे हैं। फिर आती है डीप लर्निंग, फिर आती है एडवांस एआई मास्टर क्लास, उसके अंदर फिर आप जिस मॉडल के पीछे जो मैथ्स चल रही होती है, जो एआई रिसर्चर्स होते हैं जिस तरीके से मॉडल जनरेट कर रहे होते हैं, फिर आप उस लेवल पे जाके मॉडल खुद जनरेट कर रहे होते हैं, अपना कस्टम मॉडल बना रहे होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनसेम्बलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट मेकिंग योर ओन मॉडल फ्रॉम डिफरेंट मैथमेटिकल थ्योरम, तो वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, तो उस लेवल पे तो अभी हम आपको लेके जा ही नहीं रहे, हम ही बता रहे हैं कि इस मॉडल के पीछे मैथ्स क्या इंप्लीमेंट होती है, तो इस मॉडल के पीछे ये मैथ्स इंप्लीमेंट होती है जो आज हमने पढ़ी है, बस। तो इसका पता होना क्यों जरूरी है? बिकॉज इंटरव्यूज में इसके सवाल जरूर होते हैं, पहली चीज जो सबसे आसान आंसर है मेरा। एंड सेकंड थिंग, ये आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि कौन सा मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है, अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ऑल राइट, एनी फर्दर क्वेश्चन? जी सर, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर चुका हूँ, 3 व्हाट्सएप का लिंक यहाँ शेयर कर दिया, यू कैन एक्सेस इट। Can you please explain about AutoML? Yeah, AutoML is like many people have asked about AutoML. AutoML is like guessing about model itself, और just आप data दे रहे होते हो, it's like same thing, but क्या machine learning की होती है, एक होती है AutoKeras, एक होती है AutoML. AutoKeras is for deep learning, वो आप उसमें जो भी डाटा दे रहे हो डीप लर्निंग के लिए, वो खुद से बता देता है कि भाई कितनी लेयर जनरेट हो रही होनी चाहिए, एंड AutoML is for different purpose, but it's for machine learning purpose. वो अपनी तरफ से मॉडल सेलेक्ट कर रहा होता है, आगे देख लेंगे तो जाके, पहले मशीन लर्निंग के बेसिक मॉडल्स तो हो जाए। सो देन ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, आई डोंट नो हु व्हेन इज ही, बट ही सेड मी टुडेज होमवर्क, आज का होमवर्क ये, इफ यू सी हियर इम्प्लीमेंटेड हियर numpy array, हमने डाटा को numpy array में कन्वर्ट नहीं किया, एंड वी जस्ट ट्रेन दिस डाटा सेट इनटू मॉडल। तो आज मैं इसको अपने उसमें असाइनमेंट के डॉक्यूमेंट में ऐड भी कर देता हूँ, वहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप नए आने वाले बाद में भी उसको एक्सेस कर सकें। तो एक्सेस आपने कहा आज टास्क ये टू टेल मी कि क्या
नंपाई एरे कन्वर्ट करने के बाद मॉडल की एक्यूरेसी में कोई फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर आपको एक्यूरेसी में कोई फ़र्क मालूम होता है सो डू टेल मी। यहाँ पे तो हमारे पास प्रिडिक्शन बाय एरे में इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पे हम मॉडल डॉट पी एरे में रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम हमारे पास नहीं है, देख लेते हैं दिखा टारगेट की जगह फीचर्स लिख दूँ, अगर टारगेट भी डेटा में नहीं है और फीचर्स भी डेटा में नहीं है, so how we are passing this entire data set into this होमवर्क है। नंपाई में कन्वर्ट करना है इसको जिस तरह पहले हमने किया पहले नोटबुक्स के अंदर, और फिर मुझे बताना है कि क्या एक्यूरेसी में कोई फ़र्क आया या नहीं आया। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज एवरीथिंग फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो, जिंदगी रही तो, एंड विल लर्न अबाउट डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, एंड देन विल come to the end to classification and will enter unsupervised learning. All right, Allah Hafiz, bye bye.